मेरा नाम डॉक्टर मसूद है। मैं एनसीपीपी में बहैसियत हेड ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स काम करता हूँ। आजकल खिदमत खल्क के लिए निकले में आपसे दो चार गुजारिशात करनी थी। जैसा कि पता है कि बहुत ज़्यादा मायूसी है, नेगेटिविटी है, तो कोशिश ये करनी है कि हम अपना किरदार अदा करें, जितना लोगों की हो सकता है उतनी मदद करें। बहुत ज़्यादा कुछ ना कर सकें तो पड़ोस में अड़ोस में आपके लोग हैं बहुत सारे जिनका आपको पता है कि वो बेरोज़गार हुए में और वो परेशानी में, तो उनकी मदद कीजिए। उसके अलावा एक गुजारिश ये है कि हम इस लॉकडाउन को प्रॉपर लॉकडाउन बनाएं, वो हम नहीं बनाना है। हम कोशिश करें कि घरों में रहें, बिला वजह घर से बाहर ना निकलें, लोगों की मदद के लिए निकलें बाहर या फिर उनकी रहनुमाई के लिए निकलें। रहनुमाई ये होनी चाहिए कि आप बिला वजह रोडों पे ना बैठें, अदरवाइज़ ये लॉकडाउन बढ़ता जाएगा। आपके केसेस ख़त्म होंगे तो लॉकडाउन ख़त्म होगा। अगर ये केसेस बढ़ते रहेंगे तो लॉकडाउन आगे बढ़ेगा और गरीब आदमी क्या अमीर आदमी भी इसको लंबा बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो आपसे गुजारिश ये है कि घरों में रहें, अपना और अपने बच्चों के बार बार हाथ साफ़ कीजिए। इसी तरह लोगों को तरगीब करें और जितना हो सकता है लोगों की मदद करें। शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। Very good evening. This is pharmacist Mashal Daniel over here, and I am talking from the platform of NCPP. Basically ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि हम आपके साथ शेयर कर सकें that how to stay positive in this current isolation scenario. First of all, I would like to address my colleague, my fellow pharmacists who are working, who are serving the nation right now in the community setup and in the hospital setup. So I know that the obstacle that they must be facing right now are the continuous long hours, long working hours, the frustration that they have while in order to connect to the patient and attendants, क्योंकि इस वक्त सब मेंटली एक सेचुरेशन पे पहुंचे हुए हैं. तो इन ऑर्डर टू टैकल दैट बिहेवियर, इन ऑर्डर टू टैकल ऑल दैट सेचुरेशन onto themselves, it's very difficult for them. लेकिन I just want them to know one thing, and that is what they can do in this current scenario is just to accept first that this is an international crisis, and once we'll accept it, it will become easier for us to overpower that. Secondly, you need to take the pride in whatever you're doing, because right now you are the frontline warriors that is serving the nation in this national crisis we are facing right now. So you are somebody who is extremely honored to do this. And second, I would like to address the common, the layman, the common people, the nation overall, that see, your community pharmacy and your hospital pharmacy is always there for you. Even if you talk about the hospital pharmacy, they are available for you 24/7. If you talk about the community pharmacy, they have been precise to certain timings, but they are for you. जब आपको पता है कि अब OPDs बंद हैं, तो अगर आपको कहीं, they are the ones who are your medical experts. So if you have any issues, you can go, you can discuss with them. They are the one who are making sure कि आपकी medicines की supply जो है वो आप तक पहुंचती रहे. इसी basically इसको आगे लेके जाने में there are certain steps that have been taken. आप दवागो की बात कर लें, आप मेरी फार्मेसी की बात कर लें, आप हॉस्पिटल सेटअप में लियाकत नेशनल हॉस्पिटल की बात कर लें. दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट इन देयर कैपेसिटी कि वो आपको आपकी मेडिसिन घर तक भी पहुंचाएं, सो दैट यू डोंट हैव टू गो आउट, आपको बाहर ना निकलना पड़े इस सारे सिनेरियो में. One important thing as a pharmacist that I would like to quote is please do not go for any self medication. I know that everybody is so panic right now, everybody is going through anxiety right now, लेकिन there are certain medications जो कि इस वक्त market हो रही हैं, broadcast हो रही हैं as the treatment plan for the COVID-19. लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. We don't have any authentic news related to that. So my suggestion would be कि आप please हर किस्म की self medications को just leave that medication वाला part to your pharmacist and to your consultant. Do not go for any self-medication. Say no to self-medications and totkas at home. What you can do is just stay at home, stay safe, practice social distancing, wash your hands frequently, and just take care of yourself and take care of your mental health. That's the only thing that being a nation, being healthcare professionals, we want your part to be contributed into this scenario. And I would like to end this thing with the with the appreciation, with the acknowledgement. I would like to make the whole community pharmacy and the hospital pharmacy, the pharmacists that are working there, that are making sure that you get all the services that are needed.
So yes, my salute to them, that the whole healthcare team, उसमें हमारे पास पूरा paramedic staffs आ रहे हैं, pharmacists आ रहे हैं, consultants आ रहे हैं, and every single person, starting off from the healthcare professionals and all the related professions who are contributing into them. You are doing an amazing job for your nation, and the whole nation is proud of you. I would like to sign off, and I hope that you are going to, everybody of you is going to stay at home and is going to stay safe. So thank you so much. Allah Hafiz. फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है कुरतुलैन और मैं हूँ फार्मासिस्ट और एनसीपीपी के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो यही है कि हम किस तरीके से अपने टाइम को प्रोडक्टिव बना सकते हैं इस लॉकडाउन पीरियड में। तो पहले फ्रेंड्स हम लोग के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता था अपने घर वालों को देने का, तो आज हमारे पास टाइम है, तो हम बेकार में न्यूज़ देख के अपने आप को डिप्रेस करने से बेहतर है कि हम जो है वो ये सोचें कि हमारे पास क्या क्या स्किल्स हैं, हम किस चीज़ में सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपनी स्किल्स पर वर्किंग करें, उसको टाइम दें। जैसे कोई रीडिंग में अच्छा है तो वो चाहे तो नॉवेल्स पढ़ ले, कोई इंग्लिश की अच्छी बुक्स पढ़ ले, अपने बच्चों को लेके बैठे, उनको अच्छी अच्छी सी कहानियाँ, सबक आमोज़ कहानियाँ सुनाएं। इस्लामिक बुक्स अगर किसी को पढ़ने का शौक है तो इस्लामिक बुक्स पढ़े, बल्कि कोई एक टाइम डेडिकेट कर लें कि आज हम इस आयत का तर्जुमा पढ़ेंगे और उसकी तफसीर पढ़ें, अपने बच्चों को लेके बैठें, उन्हें समझाएं, उन्हें सुनाएं, उनको एक एंटरटेनमेंट के अंदाज से उनको बताएं ताकि उनको भी मज़ा आए। बच्चों को आपके वक्त की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे बेचारे बाहर भी नहीं निकल पा रहे, कोई काम नहीं कर पा रहे, तो उनके साथ एक्टिविटीज़ करें। तो आपका बच्चे किस चीज़ में अच्छा है उसके ऊपर ज़्यादा वर्क करें, उसे कोई प्रोजेक्ट्स दें, कोई टास्क दें, उसके साथ इन्वॉल्व हों, उसके साथ खेलें, ताकि जो है वो, क्योंकि ये आपके बच्चे के लिए फिजिकल वेलबींग के लिए, उसकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को टाइम दें, बजाय इसके कि आप जो है वो मोबाइल में लगे रहें, न्यूज़ देखते रहें और परेशान होते रहें। तो दूसरा ये कि आप ये कर सकते हैं कि अगर कोई कुकिंग में अच्छा है तो वो अपनी कुकिंग पर कॉन्सेंट्रेट करे। पहले तो टाइम नहीं होता था, जो वर्किंग वूमेंस होती थी वो बेचारे बच्चों को बड़ी मुश्किल से मुश्किल जो है वो कुछ खिला पाती थी, बाज़ार के बने हुए सेरेलैक दे देती थी। तो अब चाहिए उनको कि वो इम्यून बूस्टिंग फूड्स बच्चों को दें, उनके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाएं, इम्यून बूस्टिंग ड्रिंक्स बनाएं, जिससे उनकी क़ुव्वत मुदाफ़अत स्ट्रॉन्ग हो, जिससे आपकी अपनी क़ुव्वत मुदाफ़अत स्ट्रॉन्ग हो। तो आप कुकिंग पर कॉन्सेंट्रेट करें, बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ें बना के खिलाएँ। इसके अलावा अगर आप पेंटिंग्स में अच्छे हैं तो अपनी कोई पेंटिंग कर लें, कोई पोइट्री लिखने में अच्छा है तो वो पोइट्रीज़ लिखें। अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना चाहते हैं तो आप फेसबुक पे कोई पॉजिटिव ग्रुप बनाएं, उस पर पॉजिटिव चीज़ें डालें ताकि लोग उसको पढ़ के खुश हों, पोएम्स लिखें, कोई एजुकेशनल मटेरियल डाल दें। जैसे कि मैं हूँ कि मैं वर्किंग वूमन भी हूँ, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम घर पर भी मिल रहा है, मैं ऑफिस भी आ रही हूँ, लेकिन मेरे वर्किंग आवर्स चूँकि कम है तो मैं अपने बच्चे को टाइम देती हूँ, उसे अच्छी अच्छी चीज़ें बना के खिलाती हूँ। मुझे सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने का शौक है, तो मैंने जो है वो अपना चैनल ग्रीन बर्ड के नाम से यूट्यूब पे खोला है, तो मैं उस पर जो है वो वर्किंग करती हूँ। तो इस तरह से मेरा टाइम जो है वो बहुत ही प्रोडक्टिव जो है वो मैनेज हो रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इन सब चीज़ों पे वर्क करें तो बजाय इसके क्या परेशान हो, बेहतर यही है कि आप जो है वो अपना टाइम घर पे अच्छे से अच्छा गुजारें, एक्सरसाइज करें, वॉक कर लें। एक्सरसाइज से भी जो है वो आप मेंटली रिलैक्स फील करेंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, घर वालों के साथ अच्छी बात करें, अपनों के बारे में बात करें, बजाय इसके कि हालात हाजिरा पे आप शुरू हो जाए। क्योंकि जो है वो जितना आप डिप्रेस्ड फील करेंगे, जितना आप डिप्रेशन में जाएंगे, उतना आपका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक होगा और आपके ऊपर और ज़्यादा वायरसेस और दूसरी किस्म की बीमारियां आपको हो सकती हैं। तो चाहे और लोगों की मदद करें, आप ये फाइंड आउट करें कोई कौन है जो जिनको वाकई ज़रूरत है, तो उनकी मदद करें, उनके घर में राशन डलवा दिया, उनसे पूछ लिया। जितना आप सोशली एक्टिव होंगे, लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, उतना ही आपका दिल भी मुतमईन होगा और आप कोई बेहतरीन काम कर सकेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सी यू सून, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।